तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है द डाइसेक्राइड प्रेजेंट इन मिल्क। फर्स्ट ऑप्शन सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड सेलोबायोज। एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज lactose. And second question is the enzyme used during the fermentation of carbohydrate to CO2 and alcohols is first answer is zymase, second diesters and invertase and maltose. Exact answer of this question is zymase. And then third question is which is not a carbohydrate: starch, cellulose, glycogen and maltose. Exact answer of this question is सॉरी दोस्तों, एक आंसर दूसरा हो गया। इस फर्स्ट आंसर इज स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। तो 14 विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसेक्राइड: स्टार्च, सेलुलोज एंड glycogen and maltose. Exact answer of this question is maltose because maltose is a disaccharide. And answer 7 which of 5 which of this following is a polysaccharide: isomaltose, cellulobiose, lactose and inulins. Exact answer of this question is inulin is a polysaccharide. The sixth question is hydrolysis of the stable sugar produce two molecules of glucose: glucose fructose, glucose galactose and glucose and lactose. Exact answer of this question is glucose and fructose. Table sugar is another name of sucrose. सुक्रोज को ही हम लोग तो टेबल शुगर भी कहते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ दिस फॉलोइंग बेस इज प्यूरिन। फर्स्ट इज थायमाइन, यूरासिल एंड साइटोसिन एंड एडेनिन। एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एडेनिन because thymine and uracil and cytosins they are pyridine. And eighth number question is which enzyme is used during the production of alcohol from the carbohydrate by the fermentations? First answer is invertase, zymase and starch and molasses. Exact answer of this question is zymase. तो दोस्तों, तो अल्कोहल अगर विच एंजाइम इज़ यूज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट को जब हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं तो अल्कोहल बनता है, उसमें जाइमेज एंजाइम हम लोग यूज करते हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज एल्डोहेक्सोज: सेलुलोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज एंड रेफिनोज। एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्लैक्टोज इज द एल्डोहेक्सोज। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों मोलिस टेस्ट इज गिवन बाई glucose, sucrose, fructose, and all of this. Exact answer of this question is all of this because moles test is given by carbohydrate and glucose, sucrose, fructose all of this is carbohydrate. तो 11 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों माल्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस glucose, fructose, maltose and mannose. Exact answer of this question is glucose. When maltose is hydrolysis, they produce two molecules of this glucose. But when sucrose is hydrolysis, they produce glucose and fructose. तो दोस्तों 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ दिस फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड ऑन पॉलीपेटाइड चेन: एस्पेटिक एंड गुल्टा एमाइनिक एनालिनिक एंड एसिटिक एसिड। एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एसिटिक एसिड इज नॉट फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। तो दोस्तों 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा ammonia acid usually exists in the form of zwitter and this means they consist of the basic NaH group and acidic COH group and the basic NaH3 plus group and acidic CO minus group. Exact answer of this question is तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन है द बेसिक COO माइनस ग्रुप एंड द एसिडिक NaH3 plus group and the positive ammonium NH plus group and the negative chloride Cl minus group. Exact answer of this question is answer number 6 the basic COH group and acidic NH group. तो दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द pH at which ammonia acid become acidic and ammonia acid become basic. Zwitter ion has a positive charge, Zwitter ion has a zero charge. Exact answer of this question is question number D. आंसर नंबर डी ज्विटर आयन हैज़ अ जीरो चार्ज। तो 15 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों है द एंजाइम पेप्सिन हाइड्रोलाइसिस। फर्स्ट आंसर इज प्रोटीन टू एमोनिया एसिड, फैट टू फैटी एसिड, स्टार्च टू ग्लूकोजोन, न्यूक्लियोटाइड टू नाइट्रोजन बेस। तो एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए प्रोटीन टू एमोनिया एसिड।
तो दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोटीन। तो दोस्तों 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द लिपिड कंसिस्ट ऑफ फैट, ऑयल एंड इट डेरिवेटिव, एमोनिया एसिड डेरिवेटिव, पॉलीस्टेरेन एंड कार्बोहाइड्रेट। एग्जैक्ट आंसर इसका है फैट, ऑयल एंड इट्स डेरिवेटिव, लिपिड कंटेंट करा रहता है। एंजाइम इज हार्मोन, प्रोटीन, फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड। एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज protein, because every enzyme is protein except riboenzyme. DNA multiplications is called translation, transcription, transduction, replications. Exact answer of this question is transduction. तो दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन मतलब है DNA change into RNA through the transcriptions, and translations RNA change into protein, they are translations. दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग DNA को DNA में चेंज, DNA रिप्लिकेशन इज कॉल्ड रिप्लिकेशंस, और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है जब DNA को RNA में चेंज करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसलेशन जब वही RNA को प्रोटीन में चेंज करा जाता है तो ट्रांसलेशंस। तो दोस्तों इससे पूछता है which enzyme is need which what is called when the DNA is changed into RNA, the transcriptions। तो दोस्तों 22 नंबर का क्वेश्चन है, द प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन RNA, यूरासिल, साइटोसिन, थायमाइन, ग्यूनानिन्स। इसका एग्जैक्ट आंसर है द प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन RNA, यूरासिल, थायमाइन, साइटोसिन एंड ग्यूनानिन। तो ग्यूनानिन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यूरासिल और थायमिन और साइटोसिन जो है, जो प्यूरिन नहीं पैरामिडिन बेस है। प्यूरिन बेस जो होता है RNA में वो होता है ग्यूनाइन एंड एडेनिन। तो 21 नंबर का क्वेश्चन है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड आर सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड, डेरिवेटिव लिपिड, लाइपोप्रोटीन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है कॉम्प्लेक्स लिपिड। एंड मिल्क सुगर इज माल्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लैक्टोज। तो 23 नंबर का क्वेश्चन है, स्टार्च इज हाइड्रोलाइसिस टू माल्टोज बाय द एंजाइम ऑफ, स्टार्च हाइड्रोलाइसिस टू माल्टोज बाय द एंजाइम ऑफ। इसका दोस्तों एग्जैक्ट आंसर है हम लोग का, एग्जैक्ट आंसर है इसका डाइस्टार्च। तो दोस्तों 24 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज एंड माल्टोज। एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द फ्रुक्टोज। एंड 25 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड इनहिबिशन, इन्वर्जन एंड हाइड्रेशन एंड स्पोनिफिकेशन। एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन्वर्जन। तो दोस्तों 24 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर। इसका पहला आंसर है सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड माल्टोज। एग्जैक्ट आंसर है इसका फ्रुक्टोज। तो 25 नंबर का क्वेश्चन है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड इनहिबिशंस एंड स्पोनिफिकेशंस, इन्वर्जन्स एंड हाइड्रेशन। एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन्वर्जन। तो दोस्तों ये 26 नंबर का क्वेश्चन है, अल्काइल हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इज नोन एज एस्टरिफिकेशंस, स्पोनिफिकेशंस एंड डिहाइड्रेशंस एंड अल्काइनेशंस। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है इस स्पोनिफिकेशंस। तो 27 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ दिस फॉलोइंग एंजाइम हाइड्रोलाइसिस ट्राई गैसलिस्ट टू फैटी एसिड एंड ग्लाइकोल्स। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर एमाइलेज, माल्टोज, लाइपेज एंड पेप्सिन। तो लाइपेज। फैट फैट इज फर्स्ट लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड एमोनिया एसिड। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों फैट इज लिपिड। तो 29 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, टू कम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इन द डबल हेलिक्स आर जॉइंट इज ऑर्डर बाई ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। इसका एग्जैक्ट आंसर है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड।
टू कप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन द डबल हेलिक्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड जो रहता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ज्वाइंट रहता है। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ आरएनए इन ह्यूमन बॉडी, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक, प्रोटीन सिंथेसाइज, एक्ट द सेकंड मैसेंजर एंड मेंटेन द क्रोमोसोमल लेंथ। इसका दोस्तों तीसरा नंबर का एग्जैक्ट आंसर हमारा होगा प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि जो मेन फंक्शन आरएनए का है उसका मेन फंक्शन वही है प्रोटीन सिंथेसाइज का, और जो अगर डीएनए का मेन फंक्शन पूछा होता तो उसमें होता ट्रांसमिशन ऑफ दिस हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक। तो दोस्तों 31 नंबर का हमारा क्वेश्चन है द अपन हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन इज, अपन हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन गिवन फैटी एसिड, हाइड्रोक्साई एसिड, अल्कोहल एंड एमोनिया एसिड। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा एमोनिया एसिड। तो 32 नंबर का क्वेश्चन है लिपिड फैट आर कन्वर्ट इनटू सॉलिड फैट आर, लिक्विड फैट are converted into solid fat by hydrogenation, sphonification, hydrolysis and oxidation of this double bond। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा हाइड्रोजनरेशन से एग्जैक्ट आंसर होगा। तो 33 नंबर का हमारा क्वेश्चन है सिंथेसाइज्ड डिटर्जेंट कैन बी रिप्रेजेंट बाय दिस जनरल फार्मूला RONN ROSO3N RCONA RCOH। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ROSO3N। तो 34 नंबर का क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड ऑफ इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द मीन्स ऑफ आयोडीन नंबर, ऑक्टेन नंबर, स्फोनिफिकेशन नंबर, मेल्टिंग पॉइंट। जो डिग्री है अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ फैट डिटरमाइंड बाय द मीन ऑफ, इसका दोस्तों एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा आयोडीन नंबर। जो आयोडीन नंबर है वही डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड फैट का डिटरमाइन करता है। तो दोस्तों 35 नंबर का क्वेश्चन है फैट एंड वेल आर मोनोस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल, डाइस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल, ट्राइस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल एंड डाइस्टर ऑफ ग्लाइकोल। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा होगा ट्राइस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल। तो 36 नंबर का क्वेश्चन है मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन कार्बन, विटामिन सी एंड विटामिन B12, हेमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है जो सबको पता भी होगा मैग्नीशियम जो है जो क्लोरोफिल में बहुत प्रेजेंट रहता है 36 क्लोरोफिल। तो दोस्तों 37 नंबर का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ दिस फॉलोइंग मेटल आयन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मसल्स कंट्रैक्शंस, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। एग्जैक्ट आंसर है इसका कैल्शियम। तो 38 नंबर का क्वेश्चन है हमारा एंटीमोनी कंपाउंड आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, फर्स्ट आंसर इज कालाजार, सेकंड फ्लेरियल, स्लीपिंग सिकनेस, छगास डिजीज। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है हमारा कालाजार। तो 29 नंबर का क्वेश्चन है द कैटेशन नेसेसरी फॉर कोगुलेशन ऑफ दिस ब्लड, सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम एंड क्लोरीन। एग्जैक्ट इसका आंसर है दोस्तों कैल्शियम। It is the important source of sugar, protein, riboflavin and hemoglobin। तो इसका दोस्तों एग्जैक्ट आंसर होगा विटामिन सी, जो इसका अनदर नेम विटामिन बी टू भी है राइबोफ्लेविन का नाम, वो विटामिन B2 का इंपॉर्टेंट सोर्स ईस्ट है। तो 31 नंबर का क्वेश्चन है द फैटी एसिड विच मस्ट ऑब्टेन फ्रॉम डाइट आर कॉल्ड इसेंशियल फैटी एसिड, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो दोस्तों ऐसा कौन सा फैटी एसिड है जो कि ऑब्टेन फ्रॉम डाइट, हम लोग डाइट से ऑब्टेन कर लेते हैं। जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन है एसेंशियल फैटी एसिड, इसका एग्जैक्ट आंसर भी एसेंशियल फैटी एसिड ही होगा। तो 42 नंबर का क्वेश्चन है द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड एंड कम्प्लेक्स शुगर। इसका दोस्तों एग्जैक्ट आंसर होगा मोनोसेक्राइड। 43 नंबर का वो आंसर है क्वेश्चन है द कंपाउंड ऑफ द ब्लड विच मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, मिनरल साल्ट, आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट एंड एल्बुमिन। इसका दोस्तों एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा एल्बुमिन। The enzyme pepsin hydrolysis protein to ammonia acid, fat to fatty acid, star to glucose, nucleotide to nitrogen base। इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों हमारा फर्स्ट प्रोटीन टू एमोनिया एसिड। तो 45 नंबर का क्वेश्चन है डीएनए हैज़ विद शुगर इन इट, हेक्सोज, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, ग्लूकोज। तो दोस्तों इसका तो सबको पता ही होगा डीऑक्सीराइबोस शुगर है जो डीएनए में पाया जाता है। तो 46 नंबर का क्वेश्चन है द मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, सेलुलोज, स्टार्च एंड सेक्रोज। तो दोस्तों सेलुलोज, स्टार्च एंड सुक्रोज, सेलुलोज स्टार्च जो है जो पॉलीसेक्राइड है, सुक्रोज जो है डाइसेक्राइड है, ग्लूकोज जो है जो मोनोसेक्राइड है। तो 46 नंबर। 47 नंबर का क्वेश्चन है अमोनिया एसिड इज एमरफोटिक ड्यू टू अल्काइनिटी, एसिडिटी, स्लाइटिनेस एंड बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। एमरफोटिक मतलब वही होगा जो अल्कालिटी और बेसिडिटी दोनों शो करे, तो उसी को हम लोग कहते हैं एमरफोटिक। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।